मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर वीडियो ख़त्म हो गया वहीं पर। मैं जब जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती हूँ ना शुरू में, उसी स्टेटमेंट का फर्दर इलेबरेशन आता है, फर्दर इलेबरेट या फिर करेक्शन आता है। तो ये बातें जैसे और फ्यूचर में और पता चलेगा कितना इलेबरेट होगा और कितना करेक्शन होगा। इफ़ देर इज़ ओनली वन वे टूवर्ड्स हिम और ऑल द वेज आर टू रीच हिम। सेकंड पे रुक गए क्योंकि शुरू में ये कहा था ना, तो इससे ये सिखाया जा रहा है कि अगर हमने एक बात कही तो दूसरी बात कि देर आर मैनी वेज टू रीच गॉड should not be added in the statement. One way is not opposite to many ways. दो बातों में हमेशा एक रहेगा और दूसरा दो रहेगा, लेकिन अगर एक ही रास्ता बताया गया है कि भगवान तक पहुंचना है तो all roads reach God is not the correct statement. All ways doesn't reach him. There are many ways to reach God is not right. There should be some confrontation to abide by the statement. I didn't understand. I don't know the meaning of confrontation. बोल ही नहीं पा रही हूँ। Confrontation. Confess, confront, to speak in front of others. According to dictionary, वीडियो रिकॉर्डिंग में डिक्शनरी नहीं चालू होगा। टू डिस्कस दिख रहा है। कन्फ्रंटेशन इज शोइंग अस टू डिस्कस। मैन, दिस इज आवर डिक्शनरी। अच्छा, भगवान के डिक्शनरी अलग है ना। Why these words are coming out? Five minutes. हाँ, पता नहीं मैं क्यों रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे भी मालूम नहीं। Because something will come out in the form of speech. It's like to check
so much of jnana inside, but when it hits tongue, it doesn't comes out, because right now I am stuck only between the rights and wrongs, wrong speech, correction, repeat, not spoken properly, this word was wrong said, wrongly said. See, ग्रामर घूमता रहता है पीछे दिमाग में. सो मेरा खजाना तब खुलेगा जब आगे का ये सब हट जाएगा. The fear, what I said, shows like the fear I have, but the fear I said what I have is not my fear, right? It's not the fear I have. I mean, I don't fear, but if there are powers, you believe there are powers, then anybody you can make to possess fear. Okay, I may not be feared of anything, but the fear has reached my mind. Why? Sometimes in due respect, but the level reached to fear that you have to obey, and it became rules, but that got converted into fear. That is a fear conversion done. Then the fear of the activities, if whom we cannot see. If we see, I have seen the faces also, but whom we cannot see, and suddenly you see somebody who doesn't have body and roaming around, a lost soul, a departed soul. But somewhere, certain extent, somewhere I may feel fear. This field has been created. Otherwise, I would not have any fear of anyone, because I know who is side to me. In the sense, I am blessed, and who is with me, I know. If I have the Supreme with me, why will I fear of anyone? But no but. So I have to change many statements. नींद आ नहीं रही है, लेकिन यॉर्निंग आ रहा है. हैंड पे कंट्रोल नहीं है अभी, कभी यहाँ रहता है, कभी वो एक्चुअली इच होता है ना, इच होता है इसके लिए पहले से, लेकिन मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट है. आई हैव टू थिंक पॉजिटिव ना. इफ आई से दैट नथिंग इज चेंजिंग, then it may not change. Yeah, this is a fear. So to be positive is like we have to assure self or
speak the statement that this will happen. Otherwise, the negative is so high in the surrounding that it attaches itself to the statement, and if I don't assure assertive statement, then the negative may happen, that I have seen. So I have to speak the assertive statement, and I fear also that nothing wrong should happen. It's very, very difficult to accept a negative statement and think it, refine it, and take it as a positive. If there is no power attached to a negative statement or hatred, or you sense it something very bad about it, or your memories get attached to it, some previous memory, so it's very hard to think a positive from such comments, negative remarks. A red underline, a failure, F, red F, cannot be taken as positive. Now how can one be positive in such? Why this is coming in my this is coming because I think about both the side, to be a successful and always seeing a success in life. Somebody is seeing success in education, grows, then in speech they grow, communication they grow, fame they grow. That means they have such a rich success attached to them, luck attached to them. But I have to think about them also, and speak on from that side also, who has seen the red underline, the red F, the failures, bad lucks, no lucks. I am actually towards this side, but later on, being blessed, I have seen growth, progress, but success has to reach yet. So I can say many things about how it feels when we are not growing, progressing. मेरे पुराने वीडियोस भी आप देखोगे ना, मैं यही बात कर रही थी. How it feels. So sometimes we think कि क्या हमारा ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है क्या कि हम तक सक्सेस, लक, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है. जिस हिसाब से आजकल सब चीज़ें, जितना वो जो कंपटीशन बढ़ गया था पढ़ाइयों में, सब लोग जैसे फर्स्ट ही आना चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए, तो हम लोग तो जैसे कि 10 भी आ गया तो भी खुश होते कि हम लोग नंबर 10 रैंक आया है. 5th रैंक तो आया है कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है. तो फर्स्ट रैंक आना तो जैसे लगता है कि टू रीच मून, आउट ऑफ योर रीच, समथिंग आउट ऑफ रीच, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता. मेहनत तो करते ही है ना, फिर सोचते कि शायद हमारी बुद्धि ही ऐसी है. फिर पढ़ाई भी तो डिफ़िकल्ट लगता है, कोई इजी तो नहीं होता जो पढ़ना होता है. रट्टाफाई भी करो, कितना भी करो, और फिर एग्ज़ाम में याद करके लिखो. एग्ज़ाम में भी कुछ और ही आता है. बोलेंगे टेक्स्ट बुक का है, लेकिन हमने जितना पढ़ा उतना ही बहुत है. टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ के कौन जाएगा, हर सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक यानी. तो बीच में वो जोक्स आते थे ना, समझ लगे कि अच्छा हुआ किसी ने ये तो कहा. हर सब्जेक्ट की एक ही टीचर होती है, लेकिन हम तो सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते पढ़ते हैं.
तो हमारे ऊपर कितना लोड है, उसमें बच्चे फर्स्ट रैंक भी आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब मैं सोचती थी, इसलिए मैं फोर्स नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स को भी, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं ना। अब ये थिंकिंग जो मेरा है या था, अभी भी मैंने रखा है संभाल के कि ये थिंकिंग जो है इससे हम दूसरों को समझ पाएंगे। लेकिन इस थिंकिंग के वजह से ये नहीं होना चाहिए कि बाबा इसका थिंकिंग ही इतना ऐसा है, तो फिर पढ़ाई के मामले में तो फिर बहुत असर होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए थिंकिंग। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन तब भी पढ़ाई में अव्वल नहीं आ पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अव्वल आए या कोई 1 to 5 रैंक्स में ही आए, तो हमें उनको भी समझना है। तो अगर मेरा बात आप लोगों से अलग है तो आप लोगों को इन बातों में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। मेरा बात उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल होगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टैलेंट किसी से कम है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट नहीं है तब भी पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने आप को हमें सोचना चाहिए कि एटलीस्ट हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, और इससे हम लोग जो हो सकेगा हमारा फ्यूचर और डेवलप कर सकते हैं। तो जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, उसमें ज़रूर डेफिनेटली कोई दूसरा स्किल होगा ही होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि किसी में कोई हुनर ही ना हो, कोई टैलेंट ही ना हो, कोई इंटरेस्ट ही ना हो। कोई वीडियो भी देखता रहे या पिक्चर भी देखता रहे, हो सकता है वो आगे चल के एक अच्छा डायरेक्टर बन जाए। कोई बात करने में इतने स्मार्ट होता है वो कम्युनिकेशन लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये सब स्किल्स है, ये आज के ज़माने में हर एक पे टैलेंट है। तो अपने अंदर के हुनर को ढूंढना ही है। अगर हम पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न और नो इंटरेस्ट, बट वी डेफिनेटली हैव सम इंटरेस्ट, हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं है, कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर हम एक रीस्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमसे तो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो हमें वो ढूंढना है कि हमारे अंदर ज़रूर कोई कला तो है। शायद अभी हम नहीं पहचान पा रहे, किसी और को पूछकर भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस में माहिर हूँ। कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है, कोई किसी क्राफ्ट वर्क में हो सकता है, कोई ड्राइंग में हो सकता है, किसी को अच्छा सिंगिंग, खुद से भी देखिए लोग सिंगिंग करते हैं, खुद से म्यूज़िक बजाते हैं, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट दे कैन प्ले। देन people who have computers, they can make things on computer, they can write। किसी का इतना अच्छा क्रिएटिविटी होता है ना, सिर्फ उनका हाथ वो लिखते नहीं है, बट वो कहानियाँ इतनी अच्छी बनाते हैं ना कि या तो रिकॉर्ड करके डाल ले तो फिर वो भी अच्छा क्रिएटिविटी हो जाता है। हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए। अब YouTube में आप बैठ जाओ और बोलो ये कहानी है, लोग कहानियाँ भी सुनते हैं। क्या हमें कहानियाँ नहीं पसंद है क्या? हम लोग कहानी भी तो सुनते थे। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ना कहानियाँ सुनाने में भी बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। जो किसी ने कहानी भी नहीं सुनी होगी ना बचपन में, वो वाली भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये भी तो स्किल है ना, ये भी आपका टैलेंट है। इसमें आप बताओ, कम्युनिकेटिव स्किल से वही नहीं होते हैं वो जो बहुत अच्छे से प्रोफेशनली बताते हैं हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ, आपका फ्यूचर ये अच्छा रहेगा। वो आप अभी करंटली अपने आप में देखिए ना क्या है, और भगवान ने ज़बान तो दी ही है, तो इसका मतलब तो टैलेंट है ही है। ज़बान जिसको दी है, जो बात कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टली भी बात करें, वो अपने अंदर क्या धारणाएं लेके चल रहे हैं। या फीमेल्स है तो कुकिंग के वक्त पे क्या करते हैं, किसी
उन्हीं में इतनी अच्छी योग्यता होती है कि वो दूसरों को बता सकते हैं कि देखिए मैं ऐसे ऐसे खाना बनाती हूँ, तो वो भी उनका यूट्यूबिंग हो जाएगा। तो इतने सारे बातें हैं आगे बढ़ने के लिए। बच्चों में तो शुरू में पढ़ाई तो करनी ही है, अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो धीरे धीरे उनमें आ जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर बच्चा जब भी आप उनको दे दो ना पढ़ने के लिए, तो वो तो मतलब बोर होके तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं कि बोर हो रहा है यार, कौन इतना, तो ज़्यादा खींचते नहीं हैं बच्चे ना, फटाफट पढ़ के ऐसा सोचते कब काम ख़त्म हो जाए फटाफट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से होमवर्क राइटिंग पार्ट में ज़्यादा खींचा मतलब लेंदी हो जाता है ना, टाइम कंज्यूमिंग, तो उसमें उन लोग को शायद बोर होता होगा कि इतना हर टीचर इतना देती है लिखने के लिए, स्कूल में भी तो लिखवाते हैं। देन दे गिव होमवर्क, then they have to complete some activities, then complete the book, then the chapters given and all. So when it becomes lengthy and time consuming na, then they don't have interest. Otherwise they will always feel interested when you start talking about stories. English में क्या है, stories है, हिस्ट्री में स्टोरीज़ है, जोग्राफ़ी में अर्थ के बारे में बता दो, थोड़ा सा उनको वीडियो दिखा दो, तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। तो बच्चों को इंटरेस्ट है, बट द वे इज़ कि आप उनको कैसे पढ़ाते हो, कितना फोर्स कर रहे हो, क्या उनका मूड है, खेलने के मूड है। गेमिंग वाले जो बच्चे होते हैं जिनको गेम्स खेलना पसंद है, तो उनका माइंड तो पूरा वीडियो वाले पार्ट में होता है ना, वो क्रिएटिव इतना दिमाग चलता है, इमेजिनेशन। तो उनको थोड़ा सा वीडियो दिखा के ऐसा दिखाएंगे ना प्रोजेक्टर पे, घर में तो आप कंप्यूटर पे लगा दो तो डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड। थोड़ा सा कहानी सुना दो, देखिए वो खुद से दे मेक सेंटेंसेस, दे राइट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स ओनली। नाउ दिस चिल्ड्रंस ना, nowadays the children, I have seen that they are more talented and they know how to frame sentences in their own words. थोड़ा ग्रामर ही हो गया मेरा, but the force was to speak in English only, that's why I speaking in English. So this is how my statements comes wrong. It may not be correct on the grammatical part, but the intention is very nice. I mean motivational speech I tried.